لاہور نیوز میں ہوئی ربنا سٹڈیز آپ جان چکے ہیں۔ آغاز میں خبر یہ ہے کہ 9ویں جماعت کے سالانہ امتحانات کا آج سے آغاز ہو چکا ہے۔ 2.5 لاکھ سے زائد طلباء امتحانات میں حصہ لے رہے ہیں اور امتحانات کے لیے 860 امتحانی سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ غیر متعلقہ افراد کو امتحانی سینٹرز میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں 9ویں جماعت کے سالانہ امتحانات کا آج سے آغاز ہو چکا ہے۔ 2.5 لاکھ سے زائد طلباء امتحانات میں حصہ لے رہے ہیں۔ امتحانات کے لیے 860 امتحانی سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ شہر میں صبح سویرے سورج کے جلوے جاری ہیں۔ کم از کم ٹمپریچر 15 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور آئندہ چند روز میں پارہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 80% کے قریب ریکارڈ کیا گیا ہے۔ موسم کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے اور شہر میں صبح سویرے سورج کے جلوے کم سے کم ٹمپریچر 15 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور آئندہ چند روز میں پارہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ سبزیوں اور پھلوں کے منہ مانگے دام، خریدار بھی پریشان۔ لہسن 760، ادرک 680، پیاز 200، ٹماٹر 150، لیمو 120 روپے کلو میں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ شملہ مرچ 350، بینگن 150، مٹر 100 اور آلو 90، جبکہ میتھی 80 روپے کلو میں بکنے لگی ہیں۔ پھلوں میں انار بدانہ 1000، کھجور 620، سیب 400 اور امرود 300 روپے کلو میں بیچے جا رہے ہیں۔ کنو 450، کیلا درجہ اول 250 اور درجہ دوم 180 روپے درجن میں دستیاب ہیں۔ اسی پر بات کریں گے عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر۔ ہاں جی بالکل، آج جو مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے سرکاری نرخ نامے جاری کیے گئے ہیں، سبزیوں کی سرکاری ریلیز میں 4 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اور روزمرہ استعمال کی سبزیاں جو ہیں ان کی قیمتیں جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو سکی ہیں، جس میں لہسن جو ہے 5 روپے مہنگا کر کے 595 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں 760 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ ادرک 5 روپے مہنگا کر کے 515 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں 650 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ دیگر سبزیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو کریلے 20 روپے بڑھا کر 300 روپے مقرر کیے گئے، لیکن مارکیٹ میں 480 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ پالک 2 روپے مہنگی کر کے 30 روپے مقرر کی گئی، لیکن فروخت 50 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے۔ اسی طرح آلو جو ہے وہ 55 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں 80 سے 100 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ میتھی 40 کے برعکس 80 روپے اور بیگن 90 کے برعکس 150 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ پھلوں کی سرکاری ریٹس کے حوالے سے بات کی جائے تو سیب کالا کلو 330 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں 400 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ کیلا درجہ اول 190 کے برعکس 250 اور درجہ دوم کا کیلا جو 140 کے برعکس 180 روپے فی درجن تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ کینو کی قیمت میں 10 روپے کا آج اضافہ کیا گیا، 310 روپے سرکاری ریٹس میں قیمت مقرر کی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں 450 روپے فی درجن تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ دیگر سبزیاں پھل جو ہیں وہ بھی سرکاری نرخ ناموں کے برعکس مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہیں، جس پر شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں بھی سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں جو ہیں انتظامیہ کنٹرول نہیں کر سکی۔ عبدالقادر اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ نئی حکومت بھی بجلی کمپنیوں کی نااہلی کا ملبہ صارفین پر ڈالنے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ نیپرا میں فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ایک مرتبہ پھر 5 روپے فی یونٹ اضافے کی درخواست آ گئی ہے۔ نیپرا کے مطابق ترسیلی سسٹم کے مسائل دور کر کے فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ میں کمی آ سکتی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ حکومت بدلی مگر بجلی صارفین کے دن نہ بدلے۔ نئی حکومت بھی بجلی کمپنیوں کی نااہلی کا ملبہ صارفین پر ڈالنے کی پالیسی پر گامزن۔ نیپرا کو فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کے نرخ 5 روپے فی یونٹ بڑھانے کی درخواست۔ IMF کو بھی بجلی کے بڑھتے ہوئے نرخوں پر تشویش، مگر حکومتوں نے روش نہ بدلی۔ NTDC اور دیگر اداروں نے نیپرا کے احکامات کو بھی ہوا میں اڑا دیا۔ نیپرا اتھارٹی کے مطابق فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ میں اضافے کی بڑی وجہ ترسیلی نظام کی مستقل خرابی ہے۔ ترسیلی سسٹم کے مسائل کو دور کر کے فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ میں کمی آ سکتی ہے۔ رائے کے مطابق سسٹم کی خرابیوں کے باعث مہنگے پاور پلانٹس چلائے جاتے ہیں، بوجھ عوام پر ڈالا جاتا ہے۔ نیپرا اتھارٹی نے CPPA اور دیگر اداروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کا حکم دیا تھا۔ فنی خرابیاں دور کرنے کے بجائے CPPA نے الٹا 5 روپے فی یونٹ ایڈجسٹمنٹ کی درخواست کر دی۔ NTDC کی ناقص کارکردگی سے صارفین پر 40 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا۔ عوام کو مہنگائی سے ریلیف دینے کا پلان ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور پنجاب حکومت کے نگہبان رمضان پیکج کے لیے کاؤنٹرز لگ گئے، جبکہ صارفین کی رجسٹریشن کا عمل بھی جاری ہے اور خواتین کا رش بڑھنے لگا ہے۔ رپورٹ کریں گے زاہد عابد۔
रमज़ान रिलीफ पैकेज यूटिलिटी स्टोर्स पर सार्फिन की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर ही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और पंजाब हुकूमत के निगहबान रमज़ान पैकेज के काउंटर्स लग गए। मियां मीर में यूटिलिटी स्टोर्स पर दोनों काउंटर्स पर रश। खवातीन की बड़ी तादाद ने रजिस्ट्रेशन के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर लिया। शनाख्ती कार्ड, यूटिलिटी बिल्स और बच्चों के बेफार्म साथ लाने की हदायत। अहलियत के मेयार पर पूरा उतरने वालों की रिलीफ पैकेज के लिए रजिस्ट्रेशन हो रही है। ताहम रजिस्ट्रेशन के तरीकाकार में मुश्किलात से आवाम नाला दिखाई दिए। बेवा मैं औरत हूँ, 10वीं माँ हो गए मेरे मियाँ फोत हुए को, हमारी अभी तक की बारी नहीं आई, 8 बजे के यहाँ बैठे हुए हैं। 47,500 मेरी तनख्वाह है, ये कहते हैं जी 60,000 तक हम देते हैं। कुछ उन्होंने मदद की, कुछ मेरे पास जब बुलावा मुझे आ गया तो मैं उम्रा करने चला गया, मेरा पासपोर्ट बन गया। अब ये है कि जी ये पासपोर्ट मैंने आपको नहीं मिल सकता। मरीम नवाज से मुझे यह कहना है कि आकर देखें यूटिलिटी स्टोर पे ये जो आपने ट्रक वालों को राशन दिया हुआ है वो भी हमें जलील करके दे रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर पर आम सारिफ को घी 435 और बेनजीर प्रोग्राम के सारिफ को 355 रुपए किलो मिल रहा है। बेनजीर प्रोग्राम के सारिफ के लिए 10 किलो आटा 648 रुपए में दस्तयाब, जबकि आम सारिफ को 1370 रुपए में दिया जा रहा है। बेनजीर प्रोग्राम के सारिफ को चीनी 109 और आम सारिफ को 155 रुपए फी किलो मिल रही है। वफाकी हुकूमत तो यूटिलिटी स्टोर जबकि पंजाब हुकूमत खुसूसी राशन प्रोग्राम के जरिए रिलीफ देने में मसरूफ अमल है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। पंजाब हुकूमत का इकदाम ब्रॉयलर और अंडों की कीमतों को लगाम, जबकि चिकन की कीमत 563 रुपये फी किलो बरकरार है। जिंदा ब्रॉयलर होल सेल 374, परचून रेट 388 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 269 रुपये पर बरकरार है। मार्केट में अंडों की पेटी 7,950 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल आज दूसरे रोज भी ब्रायलर की कीमतें जो है मुस्तकम रखी गई हैं और 563 रुपये फी किलो की सतह पर ब्रायलर गोश्त की कीमत जो है बरकरार रखी गई है। गुज़िश्ता रोज भी कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया था, आज भी कीमतें जो है 563 पर ही बरकरार है। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमत भी मुस्तकम है, 374 रुपये होलसेल की कीमत है, जबकि परचून की कीमत जो है वो जिंदा ब्रायलर में 388 रुपये फी किलो जो है बरकरार रखी गई है। अंडों की कीमतें में जो इजाफा था वो भी अब कम चुका हुआ है, क्योंकि अंडों की कीमतें 269 रुपये फी दर्जन की सतह पर गुज़िश्ता दिनों से जो है वो बरकरार रखी गई और आज की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। और इस हवाले से शहरी निज़ाम की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि कीमतों को अब जो है वो कम किया जाए, क्योंकि अंडों की कीमतें आज जो है वो बिला जवाज़ बुलंद सतह पर बरकरार रखी गई है। मौसम तब्दील हो चुका है और अंडों की डिमांड में भी खातिर कमी आ चुकी है। अब अंडों की कीमतों को कम होना चाहिए और ब्रायलर की कीमतों को भी कंट्रोल किया जाना जरूरी है, क्योंकि ब्रायलर जो है वो पहले ही ओवर प्राइस हो चुका हुआ है। अपनी असल कीमत 400 साढ़े 400 रुपये पर जो है ब्रायलर गोश्त को दोबारा जो है वो वहाँ पर मुकर्रर करना पड़ेगा, क्योंकि तमाम शहरी जो है वो ब्रायलर गोश्त की खरीदारी बआसानी कर सकें। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर आंच नहीं आने देंगे। दहशतगर्दी के हवाले से कोई समझौता नहीं होगा। जो पाकिस्तान पर हमला करेगा उसके साथ वही सलूक किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। मज़ीद कहा, मुल्क में जो भी गैर कानूनी मुकीम है उन्हें वापस जाना होगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर आंच नहीं आने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, दहशतगर्दी के हवाले से कोई समझौता नहीं होगा, उनकी जानिब से ऐसा कहा गया है। आपको बता रहे हैं वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से दो टोक ये मौक़िफ़ सामने आया है और दहशतगर्दी के हवाले से कोई समझौता नहीं होगा। ऑफिस लाहौर में सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के बाद मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। विफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि अफगानियों समेत तमाम गैर मुल्की अफराद जिनके पास वीज़ा नहीं है उन्हें मुल्क बदर होना होगा। उन्होंने कहा कि अब वो वक्त नहीं रहा कि दहशत गर्दी की सिर्फ मजम्मत की जाए। कोई भी इलीगल इमिग्रेंट यहाँ पे मौजूद है उसको जाना पड़ेगा। अगर उसके डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं है, उसके पास वीज़ा नहीं है, हम किसी को ये नहीं कह रहे कि आप वापस नहीं आ सकते, वीज़ा लें और वापस आएँ। कोई भी मुल्क जो पाकिस्तान पे अटैक करेगा या उसके मुल्क में से बैठ के हमारे ख़िलाफ़ प्लानिंग होगी, उसका जवाब उसी तरह मिलेगा जिस तरह हमने पहले जवाब दिया है और उसमें कोई नरमी नहीं है। अब कोई वो बातें नहीं रह गई हैं कि एक स्टेटमेंट जारी कर दें। मोहसिन नकवी का कहना था कि जब तक सोशल मीडिया के कवानीन नहीं बनते किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अमेरिका में भी टिकटॉक पर पाबंदी लगाई गई है। अभी टिकटॉक बंद हुआ है अमेरिका में, कितनी सारी चीज़ों के बाद उन्होंने चार्जशीट लगा के बंद किया है। तो अगर अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ हम कहते हैं कि सबसे बेस्ट जमहूरियत है, अगर वहाँ पे ये चीज़ हो रही है तो हमें भी अपने लॉज को रिव्यू करना पड़ेगा। मोहसिन नकवी ने सेनेट इलेक्शन में सपोर्ट करने वालों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह कामयाब होंगे।
पंजाब हुकूमत का सूबे भर में सफाई का निज़ाम आउटसोर्स करने की तजवीज़ पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने काश्तकारों पर सफाई टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था कि सफाई के नए निज़ाम से 1.25 लाख तक नई मुलाजमतें पैदा होंगी। ये रिपोर्ट देखें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से इजलास। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मॉडल मैकेनिज्म नाफिज करने की डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर आला ने मॉडल मैकेनिज्म का प्लान तलब कर लिया। सूबे की हर डिवीजन में मुजव्वज़ा 23 लैंडफिल साइट्स का प्लान पेश। साहिवाल में फंक्शनल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का जायजा, दीगर शहरों में नाफिज करने पर गौर। वज़ीर आला की हर डिवीजन में कचरे की सेग्रीगेशन का प्लांट नस्ब करने का जायजा लेने की हिदायत। आवाम को सफाई की सहूलत यकीनी बनाने के लिए लोकल कम्युनिटी कमेटी बनाने की तजवीज़। साहिवाल और सरगोदा में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बनाने की तजवीज़ पर भी गौर किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था कि सफाई के नए निज़ाम से 1.25 लाख तक नई मुलाजमतें पैदा होंगी। पंजाब भर में सफाई का पायदार और मौसर निज़ाम लाएंगे। हर गली मोहल्ले और देहात की सफाई का पायदार निज़ाम नाफिज किया जाएगा। देहात का दौरा करके खुद सफाई के निज़ाम का जायजा लूंगी। मरीम नवाज ने मजीद कहा कि देहात में कम्युनिटी के इश्तराक से गली मोहल्लों को साफ सुथरा बनाएंगे। लोकल कम्युनिटी को सफाई मुहिम की कारकर्दगी की मॉनिटरिंग के लिए शामिल किया जाए। सफाई होने से न सिर्फ माहौल बेहतर होगा बल्कि बीमारियों और आलूदगी भी कम होगी। लाहौर में विजिट के दौरान गंदगी की वजह से कई गलियों में से गुजरना मुश्किल है। पंजाब काबीना के तीसरे इजलास में सालाना और ज़िमनी बजट की मंजूरी की तौसीक। 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक की फ्राहमी के प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी गई। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के अटक जेल से अडयाला जेल में ट्रायल की भी मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि एम्बुलेंस प्रोजेक्ट का ट्रायल बुनियादों पर आगाज़ किया जाएगा, जबकि सरकारी मुलाजमत में करप्शन, सियासी वाबस्तगी और नाअहली बर्दाश्त नहीं होगी। ये रिपोर्ट देखें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का तीसरा इजलास। अदालत की हिदायत पर बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के अटक जेल से अडयाला जेल में ट्रायल की मंजूरी दे दी गई। साल 2023-24 के सालाना बजट और ज़िमनी बजट ग्रांट की मंजूरी की तौसीक। लाहौर नॉलेज पार्क को पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के स्पुर्द करने की मंजूरी दी गई। पाकिस्तान का सबसे बड़ा IT सिटी बनाने के लिए अराजी CBD को मुंतकिल की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की एक साल में IT सिटी के दोनों टावर्स मुकम्मल करने की हिदायत। पंजाब काबीना इजलास में पंजाब बैंक की तरफ से 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स की फराहमी के प्रोजेक्ट की मंजूरी। इलेक्ट्रिक बाइक के साथ पेट्रोल बाइक भी देने का फैसला किया गया। तलबा पर बोझ कम करने के लिए डाउन पेमेंट कम करके 25,000 और माहाना किस्त भी 5,000 से कम होगी। CEO पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की डेपुटेशन पर तैनाती में तौसी की असूली मंजूरी। इजलास में पंजाब एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया। मरियम नवाज शरीफ ने कहा, अपने लोगों को बर वक्त इलाज की हर सहूलत देना चाहते हैं। कितने दुख की बात है कि सैनिटरी वर्कर्स सेफ्टी किट न होने की वजह से जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, किसी की सिफारिश की है ना करूंगी। सरकारी मुलाजमत में करप्शन, सियासी वाबस्तगी और नाअहली बर्दाश्त नहीं होगी। मुझे 12.5 करोड़ अवाम को देखना है, सिर्फ सियासी फायदे के लिए फैसले नहीं करने। पंजाब काबीना ने पंजाब में लॉ अफसरान की तादाद 66 करने की असूली मंजूरी भी दे दी है।